Hello everyone, welcome to session. So this session gonna for profit and loss part 5. Till now we have covered these topics. So if you haven't watched yet, make sure you watch those sessions. And in this session we're gonna cover cheating problems, the concept related to cheating. And today we'll be discussing faulty weights and rigged balance. And also we're gonna discuss expansion and contract. So these are the two things we'll be discussing today in the cheating part. And in the next session we'll be doing the cheating related to milkman. So let's first understand how shopkeeper does a cheating, how shopkeeper can cheat you. So for this let's understand what shopkeeper does. So shopkeeper purchase something from retailer or manufacturer, purchase some quantity and at some price and sell that item, sell that quantity at some price. So these are the four things, like these are the two things basically, but in terms of quantity, price, these are the four scenarios are there, four things are there where shopkeeper can cheat. So let's see first case. This is the first case when shopkeeper is purchasing something from a manufacturer or retailer in quantity. Shopkeeper can does a cheating in quantity. This will generally not happen, and it's not generally it will not happen. But suppose this is the case, like shopkeeper does a cheating from retailer in terms of quantity. That means, like suppose retailer or manufacturer comes at shop of shopkeeper, and retailer or manufacturer sell something, but using the weights, using the like weighing machine or balance of shopkeeper, and shopkeeper has faulty weight, shopkeeper has rigged balance. So what will happen, like it will, suppose it is a rigged machine, so shopkeeper, it will show 100 kg, it will show 100 kg to retailer and shopkeeper both, but actually shopkeeper knows it is 110 kg. You getting my point? Like retailer comes to the shop of shopkeeper, there are rigged balances and it will show 110 kg as 100 kg. So when retailer put item of 100 kg, 110 kg, it shows 100 kg. So it is showing 100 kg. That's why shopkeeper will pay only for 100 kg. In actual, he has got quantity of 110 kg. So this is the one cheating. Hope you understood. So this is a one type of cheating, and other cheating he can do in terms of price. Other cheating he can do in terms of price. This will again very less likely to happen. Suppose like amount something means to be 1000. उस अमाउंट लाइक जो उसने क्वांटिटी परचेज की, उसका अमाउंट जो हो रहा था डेट वाज 1000 रुपीज, बट शॉपकीपर again do a mischief there and gave only 900 rupees, or gave a like 100 rupees note, that is like counter note, no? So there is a, so actual he paid only for 900. So this way he does cheating in a price. This is the cheating that can happen when shopkeeper purchase some item from retailer or manufacturer. Here comes like customer part. When shopkeeper is selling to the customer, then he can do, this is a like very normal cheating, generally happens, does a cheating in quantity. So when shopkeeper comes to purchase something, so again there is a rigged balances, there is a faulty weights. So a quantity that is shown 100 kg, balance पे जो तुम्हें 100 kg दिखेगा, and actually might be 90 kg. So there is a cheating, because now customer will pay for 100 kg, but actually it cost to shopkeeper only 90 kg, है ना? 90 kg का ही वो बेचेगा एक्चुअल में, बट उसे जो अमाउंट मिलेगा, कस्टमर विल बी पे फॉर 100 kg बिकॉज 100 kg सोन ऑन द बैलेंस. फाइन. सेम प्राइस में क्या कर सकता है, प्राइस में चीटिंग कैसे कर सकता है कि एक्स्ट्रा मार्कअप कर सकता है, कि लाइक जैसे तुमने देखा हो, लाइक जनरली अगर तुम्हें याद हो, बुक्स में हमारी होता था, बुक्स के ऊपर एक और लेवल लगा दिया जाएगा, जो एमआरपी है उसके ऊपर एक और लेवल लगा दिया जाएगा, लाइक 10%, लाइक 100 सपोज रुपीज उसका एमआरपी है, बट उस पर अगेन एक मार्क प्राइस लगा दिया गया 110 का. So this is the cheating in the price. So these are the four ways, four places जहाँ पर cheating हो. So let's understand what will be the multiplying factor. Again, multiplying factor is the important thing. Once we understand the multiplying factor, we don't need to worry too much. So let's understand how multiplying factor will work for these. Fine. So let's first understand this thing. Like these are the case you'll find very less, but these are the very often cases. ये तुम्हें क्वेश्चंस में बहुत ऑफन मिलेंगे,
बट दिस यू विल गेट वेरी रेयर, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड दिस इन, कम क्वेश्चंस में केस मिलेगा। ये वाले केस बहुत कॉमन है, बट आई वुड रिकमेंड कि लाइक अगर एक समझ जाओगे तो सारी समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि लाइक ये समझ में आ गया समझ, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एफ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइक लेट्स से परचेज के टाइम क्वांटिटी में वो चीटिंग कर, लेट्स से अब मेंशन है शॉपकीपर डज अ चीटिंग ऑफ 20% while purchasing, shopkeeper does a cheating of 20% while purchasing in quantity। सपोज ये स्टेटमेंट, शॉपकीपर डज अ चीटिंग ऑफ 20% इन क्वांटिटी while purchasing, परचेज के टाइम पे उसने 20% चीटिंग क्वांटिटी में की है। तो क्वांटिटी में चीटिंग की है। अब थिंक इट अबाउट लाइक शॉपकीपर परस्पेक्टिव, इफ ही इज डूइंग चीटिंग, ही और शी इज डूइंग चीटिंग, always will try to maximize their profit, है ना, it will not do cheating to lose their to make loss, it will do the cheating to make profit as much as possible। तो 20% मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 20% का, दैट इज 6/5। तो दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्टली विल बिकम 6/5। तो जो इक्वेशंस मैंने अभी तक तुम्हें बताई हैं ये होती है ना प्रॉफिट लॉस, और ये प्रॉफिट लॉस की ये जो होता है इससे ये सबसे मिलके बनता है मार्कअप डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये वाला, ठीक है। अब सपोज अगर प्राइस में चीटिंग कर, सपोज प्राइस में चीटिंग कर, सपोज प्राइस में शॉपकीपर डज अ चीटिंग ऑफ 10% इन प्राइस वाइल परचेज, सपोज ये स्टेटमेंट, तो व्हाट विल हैपन देयर, अब यहाँ पर क्या होगा 10% चीटिंग इन प्राइस वाइल परचेजिंग, तो 10% का चीटिंग इन प्राइस परचेजिंग ड्यूरिंग सेल, ठीक है, परचेजिंग टाइम पे इन प्राइस ड्यूरिंग परचेज। तो क्या करें 10% अगेन। अब सो ये सोचो जरा, अगर 10% की चीटिंग कर रहा है तो प्राइस उसे क्या देगा, ही विल ट्राई टू गिव लेस प्राइस, है ना, परचेज करते जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1000 हुआ तो अमाउंट टू 900 पे कर, तो कम प्राइस पे करेगा। क्वांटिटी क्या करेगा, वो ज़्यादा लेगा, क्वांटिटी ही विल टेक मोर। ये बात समझ में आ गई थी, तो क्वांटिटी मोर थी इसलिए हमने क्या किया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज वाला बनाया था। प्राइस वो कम पे करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा डिक्रीज वाला, देयर मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी डिक्रीज वन। बट सेम थिंग यू हैव टू थिंक, शॉपकीपर विल बी डूइंग चीटिंग फॉर हिज गेन नॉट लॉस। तो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, दैट इज 10% प्राइस, तो 10% प्राइस वो कम देगा, तो दिस विल 9/10, बट इन 9/10 विल नॉट बी ऑन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 10/9। इसको याद करने का तरीका तुम ऐसे याद कर सकते हो कि शॉपकीपर विल ऑलवेज ट्राई टू मेक प्रॉफिट, अगर इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करोगे तो लॉस आएगा, इससे प्रॉफिट आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया। सपोज उसने लाइक 100 रुपीज़ का प्राइस, वो 100 kg 1 रुपीज़ 1 kg प्राइस है, 100 kg उसने 100 रुपीज़ में परचेज किया, फाइन। नाउ बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 रुपीज़ ही इज पेइंग 90 रुपीज़। So now when he will sell this 100 kg, his cost price will be 90 rupees, his selling price will be 100 rupees. Is it or not? So this way this multiplying factor will come. Again I am repeating. देखो याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। शॉपकीपर विल ऑलवेज ट्राई टू मेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए वो ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर प्रॉफिट बनाएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए। और मैंने बताया प्राइस जो चीटिंग करेगा प्राइस में वो प्राइस कम देगा ना, क्वांटिटी ज़्यादा लेगा चीटिंग करने के लिए। तो अगर कम लेगा तो पहले 10% को 9/10 लिखो, बट दिस विल नॉट बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका रिवर्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, बिकॉज शॉपकीपर वांट्स टू मेक चीटिंग। तो ये लाइक इफ यू वांट दिस इज द वे टू मेमोराइज। एक्सप्लेन इसको मैं कैसे करता हूँ, देखो सपोज 100 kg परचेज किया रिटेलर से, 1 रुपीज़ 1 kg प्राइस है 100 रुपीज़ में, बट ही विल नॉट पे 100 रुपीज़, चीटिंग करेगा तो 90 रुपीज़ पे करेगा 100 रुपीज़, उसे मिलेगा तो 100 kg, बट वो परचेज करेगा 90 रुपीज़ में, बिकॉज 10 रुपीज़ को उसने चीटिंग। नाउ अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 90 रुपीज़। 90, देखो ओवरऑल प्रॉफिट जो तुम्हारा कैलकुलेट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एंड ऑफ सेलिंग, सेलिंग के एंड पे कैलकुलेट होगा, है ना। तो सपोज वो बिना किसी मार्कअप बिना किसी अदर चीटिंग के सेल करता है नॉर्मल प्राइस, कुछ और कोई चीटिंग नहीं करता, सिर्फ यही चीटिंग है, नॉर्मल प्राइस पर सेल करता है 1 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस था, इतने में ही सेल कर रहा है, बट उसने चीटिंग की है 10 रुपीज़ की, वो किसी को नहीं पता है।
तो 90 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस आएगा, है ना। 100 kg का, 100 kg वो सेल कितने पे करेगा, 100 रुपीज़। तो दिस विल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/9। सो दिस द वे। याद करने का तरीका वैसा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, ये तुम्हें आना। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूरिंग सेल। जब वो कस्टमर को सेल करता है तब क्या होता है, जो लाइक वेरी ऑफन होता है वो चीटिंग। व्हाट इज हैपनिंग हेयर, लाइक सेलर, अब देखो ऐसे सोचो, सेलर कोई क्वांटिटी सेल कर रहा है। अब परचेज में क्या कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू गेन एज मच एज, लाइक जितना ज़्यादा वो क्वांटिटी लेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है, ही इज सेलिंग, शॉपकीपर इज सेलिंग, तो शॉपकीपर विल ट्राई टू गिव एज लेस एज पॉसिबल, है ना। 100 kg उसे देना होगा, बट वो देगा एक्चुअल में 90 kg ही, क्वांटिटी वो कम देगा। लेना था तब वो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा था। तो व्हाट विल हैपन हियर, तो अब ये उसको क्वांटिटी कम देना है। सपोज 10% का चीटिंग है ड्यूरिंग सेल इन क्वांटिटी, दे जस्ट लाइक चीटिंग ऑफ 10% इन क्वांटिटी ड्यूरिंग सेल। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब 10% कम देगा, तो 10% कम दैट विल बी 9/10। बट अगेन जो यहाँ पे हमने प्रोसेस लगाया था, सेम प्रोसेस, शॉपकीपर विल ऑलवेज मेक प्रॉफिट, सो दैट्स वाई इट विल बिकम 10/9। 10/9 अगेन एक्सप्लेनेशन सेम है, देखो कैसे। सपोज वो 100 kg सेल कर रहे हैं, तो उसका प्राइस कितना होता है, 100 रुपीज़। 1 रुपी 1 kg इक्वल टू 1 रुपीज़, ये प्राइस। बट इन एक्चुअली द अमाउंट दैट शॉपकीपर इज गिविंग टू द कस्टमर दैट इज 90 kg। तो 90 kg का प्राइस कितना हुआ, 90 रुपीज़। शॉपकीपर को कॉस्ट कितना आएगा, 90 रुपीज़। सेल कितना करेगा, दिखाने को 100 kg सेल कर रहा है, तो कस्टमर से कितना लेगा, 100 रुपीज़। फाइन। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बट याद करने का तरीका ये है, यू कैन जस्ट थिंक इन दिस मैनर। देखो दो स्टेप पे सोचना है, अभी मैं समराइज कर दूंगा। दो स्टेप पे सोचना है, प्राइस में देखो कैसे सोचना है। अब तो सोचना है लाइक अगेन 20% चीटिंग, like shopkeeper is doing cheating of 20% in price during sale। अब सेल के टाइम वो 20% चीटिंग कर रहा है प्राइस में, तो अब वो जब बेचेगा ना तो उसे अमाउंट मिलेगा, तो ज़्यादा अमाउंट लेगा ना, ही विल चार्ज मोर, शॉपकीपर विल चार्ज मोर। तो 20% अमाउंट वो कस्टमर से ज़्यादा लेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 6/5, 6/5 होगा। नाउ तो अब ये चेक कर लो, ये शॉपकीपर को प्रॉफिट दे रहा है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज़्यादा है, प्रॉफिट दे रहा है, सो दिस विल रिमेन एज इट इज 6/5। यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, क्वांटिटी वो दे रहा है, सो ही विल बी, शॉपकीपर विल बी गिविंग लेस क्वांटिटी, तो लेस के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 होगा, बट दिस विल नॉट गिविंग प्रॉफिट टू द शॉप। जस्ट थिंक शॉपकीपर वांट्स टू मेक प्रॉफिट, सो जस्ट रिवर्स इट। सेम केस है, रिवर्स इट। इस दो स्टेप पे सोचना है। पहला स्टेप जो तुम्हारा लाइक 10% दिया हुआ है, तो इसको इंक्रीज 9/10 बनाओगे, 11/10 बनेगा, डिपेंडिंग ऑन शॉपकीपर क्या चाहता है। शॉपकीपर परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, क्वांटिटी में कर रहा है, प्राइस कर रहा है, एक बार वो फिगर आउट कर लिया, देन यू हैव टू चेक दिस इज गिविंग ग्रेटर देन लाइक 1 से ज़्यादा आ रहा या नहीं आ रहा। अगर 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा, इट मीन्स देयर इज अ लॉस, तो उसको तुम्हें रिवर्स करना, सिंपल। ये याद करने का तरीका, और एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। Ram, a dishonest shopkeeper, makes 20% cheating in weight at the time of buying and 40% cheating in weight at the time of selling. He promises to sell his good at 10% loss, find his profit पर। तो क्या कर रहा है राम, 20% चीटिंग, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 20% चीटिंग इन वेट एट टाइम ऑफ बाइंग, तो मतलब वो ज़्यादा परचेज कर, 20% वेट बाइंग में वो ज़्यादा परचेज करेगा, तो 20% का होगा 6/5। 6/5 1 से ज़्यादा है, वो कुछ नहीं। 40% चीटिंग इन वेट, 40% चीटिंग इन वेट एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो सेलिंग में वो वेट कम दे रहा होगा। 40% कितना होता है, 2/5। अब कम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, दैट विल बी 3/5, बट 3/5 विल नॉट गिव प्रॉफिट टू द लाइक शॉपकीपर, so this will be 5/3, and he promises to sell his good at 10% loss, so basically he is like giving a discount of 10%. This is 9/10, so this is the multiplying factor with respect to profit. 3 9/5, that is 4/5 का प्रॉफिट, तो 4/5 इज 80% का, the profit of 80% that Ram get to this book. Aman, a dishonest shopkeeper, and makes 20% cheating in amount
एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो बाइंग में वो 20% चीटिंग कर रहा है अमाउंट में। सो वट अमन विल बी डूइंग, like giving less money, 20% less, multiplying factor is 4/5, but this will result in profit for Aman, so that's why I'll be writing as 5/4. Again explanation उसका वैसे ही जो मैंने explain किया है कि like you will take quantity 1 kg 1 rupees and then you will compare, है ना, but directly you can write this way. And 10% cheating in weight at the time of selling. So like Aman will be giving less weight to the customers selling के time पर है, so 10% 9/10, but to make profit this will become 10/9. And he promises, he is showing that he is giving discount of 10%, that is 9/10, get cancelled 5/4, so that is 1/4, 25% का profit. These were the question related to, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जस्ट थिंक इन 2 steps जो मैंने बताए हैं, यू विल बी एबल टू डील विद द क्वेश्चंस. आई वुड रिकमेंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑल्सो बिहाइंड इट. जो मैंने एक्सप्लेन किया है 1 rupees 100 kg ऐसे करके चेक भी करो खुद, है ना, in starting until you get the clarity. I have got this clarity after doing so many questions, है ना. So initially like definitely you will not get the clarity. To get the clarity you have to do these things, you have to take small examples, you have to do 1 kg equal to 1 rupees this thing, but eventually you have to solve question like this. This is perfect, there will be not any problem. You have to just think in 2 steps कि like जो 10% है उसका क्या बनेगा, इंक्रीज बनेगा डिक्रीज बनेगा, देन इज इट ग्रेटर देन 1 और नॉट, अगर नहीं है तो उसको रिवर्स कर दो, है तो फाइन. जस्ट 2 स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियरिटी कि लाइक चीज़ें हो कैसे रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है. तो फॉर दैट्स वाई यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो. ये सारे क्वेश्चन ऐसे लिख के भी ट्राई करना. तो बात करते हैं रिग्ड वेट एंड रिग्ड बैलेंसेस एंड फॉल्टी वेट्स. तो जो अभी तक बात करें कि लाइक जैसे तुमने मशीन देखी होगी शॉपकीपर की, होती है बैलेंस मशीन है शॉपकीपर की दुकान, तो लाइक अब उसमें कुछ चेंजेस कर देता है ऐसा कि लाइक वो जब तुम उस पर 900 ग्राम पुट करोगे तो रीडिंग 1000 ग्राम देगा. तुमने एक्चुअल में 900 ग्राम पुट किया बट रीडिंग वो 1000 ग्राम की दे. या फिर वो फॉल्टी वेट्स यूज़ करेगा कि लाइक वेट पर लिखा तो है 100 kg, लाइक 1 kg, बट एक्चुअल में उस वेट का जो वेट है डेट इज 900 ग्राम. ठीक है, ऐसा करके चीटिंग होता है. तो इससे रिलेटेड जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जस्ट नोट डाउन दिस, दैट इज रीडिंग अपॉन एक्चुअल वेट, रीडिंग अपॉन एक्चुअल वेट, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग. वैसे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, रीडिंग देखो 1000 है और एक्चुअल वेट 900, दिस 10/9. बेसिकली यहाँ पर 11.11% का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारे एक शॉपकीपर. So just remember this is the multiplying factor. And again you can do the questions 1 kg 1 ग्राम कंपेरिजन करके, तो समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो. तो ये जस्ट नोट डाउन कर लिया. तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि कैसे ये चीज़ हो. सपोज लाइक शॉपकीप 1 kg अगेन इक्वल टू 1 रुपीज़. तो शॉपकीपर सपोज 1000 kg सेल करता है. तो 1000 kg जब वो सेल कर रहा है तो 1000 kg मशीन पर दिख रहा है, इट इज शोइंग बाय द बैलेंस, है ना, बैलेंस मशीन पर शो कर रहा है 1000 kg आप जो भी ले लो 1000 ग्राम. बट एक्चुअल में शॉपकीपर को पता है देर इज अ गैप ऑफ 100 ग्राम, 900 ग्राम. तो अगर एक्चुअल में 900 ग्राम है तो शॉपकीपर को कॉस्ट कितना पड़ेगा 900 ग्राम, और सेल कितने में करेगा 100 ग्राम 1000 में, क्योंकि शॉपकीपर लाइक कस्टमर सभी को 1000 ग्राम दिख रहा है, तो शॉपकीपर विल पे फॉर 1000 ग्राम. So that's why this is the key multiplying factor. Remember this, reading upon actual. Now let's do the question. Ram sells at the same rate at which he purchases his goods. So there is no markup and there is no discount. However, I think this will be, however, he uses a balance which rate 1000 gram for 900, find his profit per. Same question जो अभी हमने किया, like मैंने example explain किया. इसका multiplying factor जो होगा that is 1000 upon 900 reading upon actual weight, so that is 10/9 and that is 1/9. 1/9 is 11.11 का profit. अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो हाउ यू विल थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट जितने भी परचेज करता है, सपोज 1 kg वो परचेज करता है 1 रुपीज़, ही इज सेलिंग ऑल्सो 1 kg फॉर 1 रुपीज़. नाउ 1 ग्राम ले लेते हैं, 1 ग्राम 1 रुपीज़. तो नाउ ही अब कोई कस्टमर आता है एंड ही कस्टमर वांट्स 1000 ग्राम. कस्टमर सेज गिव मी 1000 ग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम. तो शॉपकीपर put that thing on the balance and that rates out to be 1000 gram.
reads out to be 1000 ग्राम, बट इन एक्चुअल दैट इज 900। एक्चुअल में 900 ग्राम है ना, रीडिंग कर रहा है इतनी की। सो व्हाट विल हैपन, शॉपकीपर विल आस्क फॉर 1 kg इक्वल टू 1 रुपीज 1000 रुपीज, बिकॉज ही इज सेइंग ही इज लाइक सेलिंग इट एट नो प्रॉफिट नो लॉस, ही विल बी सेलिंग एट द लाइक, वो बताएगा कि मैंने इतने पे परचेज किया है, आई एम सेलिंग ऑन दिस। बट एक्चुअल में उसको कॉस्ट कितनी लगी है, 900 ग्राम दिए, तो एक्चुअल में 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी, 900। दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, so 10/9 is the profit, that is 11 point. A shopkeeper sells at markup of 10% and at the same time uses a 1 kg weight that weighs only 900. Find his profit. Okay, so will be solved like this. A shopkeeper sells markup is 10%, at the same time uses 1 kg. अब 1 kg वो यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कितना है, 900 ग्राम। So what will be multiplying factor? Reading 1 kg का है, that is 1000 and actual is 900. Same question. That is 11/9. So this is 22.22%. A merchant weighs 100 gram less for every 1 kg that he sells. Find his overall gun percentage if his selling price is 20% more than cost. Again same question. देखो मार्कअप कितना है, क्या 20% का, that is 6/5 and seating of 100 gram, so that is 900 gram and like selling is 1000. Same 5 to 12/9, तो ये बढ़ता ही जा रहा है इसका। 3 4/3 दैट इज 33.33, पहले 11.7 था, फिर 2 हुआ 3.33.3। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। इन स्पाइट ऑफ सेलिंग एट 20% हाइयर रेट एज कंपेयर टू रेट ऑफ परचेज, अ शॉपकीपर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 10% ड्यू टू हिज फॉल्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि शॉपकीपर का जो बैलेंस है वो गलत हो, लाइक जब तुम 1000 जब तुम लाइक 1000 पुट करते हो वो 900 शो कर, बट शॉपकीपर को ये बात पता ना हो, समथिंग हैपन लाइक इन द बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कुछ हो गया, या फिर इसके वेट्स कुछ बदल गए, एक्चुअल में उसका 1000 जा रहा है बट मीटर पर शो 900। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जैसे देखो यहाँ पर केस क्या है, इन स्पाइट ऑफ सेलिंग है 20% हाइयर, वो 20% हाइयर इतना मार्कअप कर रहा है, एबल टू मेक, बट उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% का ही हो रहा है, प्रॉफिट उसे इतना ही हो रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से लिखा, यहाँ पे सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मार्कअप से रिलेटेड और वेट बैलेंस से, दो ही चीज़ें वो यहाँ पर हो रही है, एक तो मार्कअप हो रहा है और एक तो वेइंग बैलेंस है। तो दो ये आ गया तुम्हारा। व्हाट विल द रीडिंग शोन ऑन द बैलेंस व्हेन गुड वेइंग 1 kg आर केप्ट? So let's solve out 5 to FW is 11/12, and you know what is FW? FW is reading upon actual weight, reading upon actual. So what we have to find when the weighing, so 1 kg is actual weight, 1 kg is actual weight, just compare this equation, we'll be able to, रेशियो है ना, हमें पता चल गया। तो 1 kg is actual weight, reading on actual weight, तो 1 kg एक्चुअल वेट ये हमें निकालना है, एंड दिस इज 11/W, 11/12। सो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 8.33, 8.33, दैट इज 12, 12 3 36 समथिंग 999.6। तो देखो वही हो रहा है जो मैंने बताया, क्योंकि 20% अगर मार्कअप कर रहे हो तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए, बट उसे 10% लॉस हो रहा है बिकॉज उसका वेइंग मशीन इज नॉट विद हिम, है ना, शॉपकीपर के साथ नहीं है, वो कस्टमर के साथ है। तो जब 1 kg तुम पुट करोगे तो इतना शो करेगा, so there will be a loss to the customer. This is the reading. The reading will be shown by the balance. दूसरा क्वेश्चन सेम है, सेम इंफॉर्मेशन। What will the weight of goods kept in the balance when the balance rate 1 kg? तो क्या हमारा रेशियो आया था, FW was 11/12, FW was 11/12 and reading upon actual weight. So now weight of goods, अच्छा रीडिंग अब आ रही है 1 kg, एक्चुअल पूछा है, एक्चुअल कितना हो, तो अगर रीडिंग 1 kg है तो एक्चुअल विल बी 12/11, सो 12/11
तो ये तुम्हारा ग्राम में आंसर था, केजी में करोगे तो पॉइंट। तो दिस विल बी लाइक अगेन दिस यू कैन कैलकुलेट बी 1.2, जस्ट डू द, इतने केजी आंसर हो जाए, कैलकुलेशन कर लेना। 12/11 kg विल बी द 1 kg से इतना हो जाए। तो जो बैलेंस पे है एक्चुअल में उससे ज़्यादा है ना, बैलेंस पे 1 kg है बट एक्चुअल में 12/11 kg, तो ये 1 से ज़्यादा। तो दिस इज द वे। नाउ लेट्स सी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? लाइक यू माइट हैव गॉन टू द क्लोथ शॉप, है ना, जहाँ पे तुम्हारे क्लोथ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जो लाइक मेजर्ड क्लोथ मिलते हैं, लेंथ इतनी, तो वहाँ पर लाइक स्केल होती है, दैट स्केल इज ऑफ मेटल। जो मेजरिंग स्केल होती है वो मेटल की होती है। तो होता क्या है कि वो समर्स में एक्सपैंड कर जाती है, समर में एक्सपैंड कर जाती है और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसकी वजह से लाइक शॉपकीपर को प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। इतना नहीं होता है बट कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस उससे नहीं होता है कि मेटल इतना एक्सपेंड नहीं करता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है लॉस हो, बट फर्क पड़ता है उस पर, डेट वी गोना कैलकुलेट। So let's do these questions. In summers, all metallic meter scale expand by 10%. Find the profit. अब देखो यहाँ पर जस्ट वही तुम्हें सोचना है कि लाइक 1 मीटर का कॉस्ट लेट से 1 रुपी है, या फिर 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट 1 रुपी है, देन यही चीज़ लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स सी, ऑल द मेटालिक मीटर स्केल एक्सपैंड बाय 10%। अब जो स्केल है डेट इज एक्सपैंड बाय 10%। इसकी वजह से पहले तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट थिंग, कि इसकी वजह से लॉस हो गया प्रॉफिट हो, की वजह से शॉपकीपर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। अब देखो मैं बताता हूँ लॉस हो गया प्रॉफिट। मीटर का जो स्केल है, सपोज इट इज शोइंग कि लाइक ये 10 मीटर है तुम्हारा, इस 10 मीटर, अब 10% एक्सपैंड कर जाएगी तो क्या होगा, समर में 11 मीटर हो जाएगा। बट यहाँ पर रीडिंग तो 10 मीटर ही लिखा होगा, वो तो नहीं बदलेगा, रीडिंग विल बी देयर 10 मीटर की, ये स्केल जो है 10 मीटर की है, बट एक्चुअल में 11 मीटर की हो गई ड्यू टू एक्सपेंशन इन द समर। अब यहाँ पर जब शॉपकीपर सेल करेगा तो उसको कॉस्ट प्राइस देखो, अगर हम 1 मीटर 1 रुपीज़ लें, शॉपकीपर को कॉस्ट कितनी लगेगी, बिकॉज 11 मीटर का लेंथ मेजर हो जा रहा है तो 11 मीटर लगेगा, बट उसको अमाउंट कितना मिलेगा 10 रुपीज़ के हिसाब से, बिकॉज 10 मीटर है, 10 मीटर के हिसाब से उसे 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो देर इज़ अ लॉस ऑफ कितना, ये 9.09% का लॉस होगा। 10% अगर एक्सपैंड होगा देर विल बी अ लॉस टू द शॉपकीपर ऑफ 9.09%। फाइन। तो अब देखो, तो इसको कैसे फाइंड द प्रॉफिट, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर 10% का एक्सपैंड है, इफ देयर इज अ 10% का एक्सपैंड, तो डेट इज 10% का एक्सपैंड होगा 11/10, है ना, यही होगा 11/10, बट इसकी वजह से, एक्सपैंड की वजह से लॉस होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 10/11। फाइंड द, इसको सॉल्व करते हैं पूरा। इफ ही यूजेज अ मेटालिक मीटर स्केल्स टू द क्लोथ, मार्कअप उसका 10%, मार्कअप इज 10%, तो देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसकी वजह से लॉस आ रहा है, दैट इज कंपनसेटेड बाय द मार्कअप, वो मार्कअप से कंपनसेट हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन समर्स मीटर स्केल ऑफ मर्चेंट एक्सपैंड बाय 25%, by what percentage should he mark up the cloth so that even after giving a discount of 10% on the list price, the merchant still make a profit of 8%? तो अगेन सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं। expand by 25%, so 25% से expand है, so what it will be 5/4, but due to which there is a loss to the shopkeeper, so 4/5। expand अगर समर में करेगा तो मर्चेंट को एक लॉस होगा, so that is 4/5। by what percentage should he markup, so markup का multiplying factor and discount का multiplying factor will be 9/10, और प्रॉफिट उसे कितने का है 8%, तो यहाँ से का निकल आएगा, सो इज 54 अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन 2
तो देयर इज अ मार्कअप ऑफ 3/2 दैट इज 50%। सिंपल। तो सारे क्वेश्चन कितनी इजिली स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, जस्ट इफ यू आर क्लियर विद द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई नो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये सारे इन सब में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि पहले देखो हो क्या रहा है। 25%, एक तो ऐसे जस्ट रटो मत, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना कि लाइक उसने इतना परचेज किया होगा 10 मीटर, लाइक उसकी रीडिंग पर मीटर स्केल एक्सपैंड कर जाएगी 10%। लाइक इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इसका देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा। सपोज उसके पास है 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर लेंथ है या 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर वॉट एवर, 1 मीटर इक्वल टू 1 रुपीज़। इतने में वो परचेज करेगा, इतने में सेल करेगा। हर चीज़ को इंडिपेंडेंट देखो कि लाइक 10% डिस्काउंट है, प्रॉफिट, ट्रीट इट एज अ इंडिपेंडेंट। जस्ट फोकस ऑन वन इवेंट दैट इज ओकरिंग, है ना। अभी जो इवेंट है दैट इज 25% एक्सपेंशन इन द मीटर लेंथ, मीटर स्केल। तो अगर 1 मीटर इक्वल टू 1 रुपीज़ है, तो सपोज ये 100 मीटर की तुम्हारी स्केल है, तो समर्स में कितनी हो जाएगी 125। समर्स में 125 मीटर हो जाएगी, समर्स में 125 मीटर हो जाएगी। बट इसकी रीडिंग तो अभी उतनी ही रहेगी। रीडिंग वहाँ पर लिखा तो 100 ही मीटर होगा, जैसे यहाँ पर 100 मीटर लिखा, में तो चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई शॉप कस्टमर आएगा शॉप पर, तो ही विल आस्क फॉर गिव मी 100 मीटर क्लोथ। तो व्हाट मर्चेंट, व्हाट सेलर विल डू, ही विल लाइक टेक द मीटर स्केल एंड मेजर इट विथ, है ना, मेजर करेगा तो ये कितना शो करेगा 100 मीटर है, बट एक्चुअल में कितना रहा होगा, तो उसे 100 रुपीज़ का प्राइस पे करेगा। कस्टमर 100 रुपीज़ का प्राइस पे करेगा, डेट इज 100 रुपीज़, 100 मीटर का, डेट इज 100 रुपीज़। बट एक्चुअल में कितना गया, एक्चुअल में मर्चेंट के पास से कितना गया 125 मीटर। मर्चेंट को कॉस्ट प्राइस कितनी लगेगी 125 मीटर की, डेट इज 1 रुपीज़, तो 120, दैट इज 455। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने लिखा। दिस इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। चलो कॉन्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में जस्ट वैल्यू चेंज करते हैं। सपोज इट कॉन्ट्रैक्ट है ना, जस्ट इतना ही चेंज करते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होगा। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया 25%, श्रिंक कर गई, इसकी स्केल तुम्हारी श्रिंक कर गई, तो अगेन मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टली इन एग्जाम वी डोंट नीड टू डू दिस थिंग। ये तुम्हें चीज़ें अभी करनी होगी टू गेट द क्लियरिटी, बट वंस यू अंडरस्टैंड यू हैव टू डायरेक्ट राइट इट, जैसे मैं लिख रहा था, ठीक है। तो सपोज ये 100 मीटर का अगेन स्केल है। अब 25 मीटर से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो कितना हो गया 75। तो अगेन ये जो इसका मार्कअप यहाँ पे 100 मीटर लिखा होगा ना, स्केल पे लिखा होता है, तो यहाँ पर भी अभी भी 100 मीटर ही लिखा। नाउ व्हेन कस्टमर कम्स टू द शॉप, he will ask for again 100 meter. So like shopkeeper merchant will measure it with this scale and it will give 100. तो शॉप लाइक कस्टमर पे कितना करेगा 1 रुपीज़ इक्वल टू इतना ही कॉस्ट, इतना ही सेलिंग है 1 मीटर। तो कस्टमर विल पे फॉर 100 मीटर, दैट इज शॉपकीपर विल से आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, आई एम सेलिंग एट द प्राइस दैट आई हैव परचेज, so that is 100. So he will get, shopkeeper will get 100 rupees. But in actual, how much cloth has gone, that is 75. एक्चुअल में 75 मीटर ही मेजर हुआ था। तो अब ये मर्चेंट जो तुम्हारा है कस्टमर, इसको कितना कॉस्ट लगेगा 1 रुपीज़ के हिसाब से, डेट इज 7, डेट इज, तो दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डेट इज 4। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आ गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करूँगा, देख एफ, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस वन 4/3, क्योंकि देखो 25% कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 25%, तो डेट इज 3/4। बट इसकी वजह से मर्चेंट को प्रॉफिट होगा, सो दैट्स वाई दिस इज 4। एंड प्रॉफिट कितना है 108, सेम इक्वेशन 108 यहाँ पर 4/3, दिस इज 108 अपॉन 100 एंड 10% डिस्काउंट, सो दैट इज 9/10 एंड मार्कअप वी नीड टू फाइंड। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, तो 4 से ही हो जाएगा ना, 3 मार्कअप इज कमिंग 9/10। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो तुम्हारा मार्कअप की जगह ये लाइक 9/10 आया ना, तो लाइक दिस इज नॉट अ मार्कअप एक्चुअली, दिस इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इज अ डिस्काउंट ऑफ
10%, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर उसे ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है अच्छा खासा ना। यहाँ पर देखो कितना 33.33 का उसे ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया, 33 पॉइंट का प्रॉफिट है और 10% डिस्काउंट दे रहा है, ओवरऑल 8% डिस्काउंट, 8% प्रॉफिट चाहिए। तो अभी तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए मार्कअप की जगह पे यहाँ पे -10% का मार्कअप बोल सकते, -10% का मार्कअप, दैट इज दिस। फाइन, I hope this is clear. So this way you can solve, you can deal with these questions. So we are left with the milkman cheating, that will we do in the next session. I hope you liked the session. These are the concepts that are like you must know to understand the profit and loss. So that's it for today. Make sure you join the Telegram channel as well as Telegram group. Subscribe to this YouTube channel. Let's see you in the next session.